welcome back to my channel. I am Mudita Garg, a final year BMS student. Like after maybe 2 to 3 months मैं intern हो जाऊंगी, but अभी I am a final year student because my exams are going on. उसके बाद अभी जस्ट हुआ था हमारा नीट 2025 एंड मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी अबाउट माई कॉलेज, अबाउट BAMS एंड दे ऑल हैव सो मेनी डाउट्स कि मेरे पास जो भी क्वेश्चंस आए हैं आई हैव कंपाइल्ड देम ऑल एंड आई विल बी आंसरिंग देम फॉर यू, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए एडमिशन लेने के लिए। I know I have been missing out in the long form videos, but आज आना बहुत ज़रूरी था because this is a very crucial time आप सबके लिए। अभी एडमिशन्स होने वाली हैं एंड आई नो आप सबको बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी कि हम कौन सा कॉलेज लें, कौन सा कोर्स लें, अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो ये कैसा होगा, दिस दैट एंड सब कुछ। तो आई एम हेयर टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस फॉर द सेम। So first of all, I'll tell you about my college. I study in Sri Dhanvantri Ayurvedic College and Hospital, Chandigarh, Sector 46. So now, SDACH, it is a private college and it is the only BMS college situated in Chandigarh. And I'll be telling you about the admission process, like what are the pros and cons of our college, how is the academic life, the extra co-curricular, etc. So I will tell you about the admission process. The first question, how to take admission in BMS? उसके लिए आपको आयुष के पोर्टल पे जाना है, रजिस्टर करना है, जैसे कि नॉर्मली हम काउंसलिंग के लिए करने वाले हैं। यू हैव टू सिलेक्ट योर कॉलेज का प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एंड यू हैव टू बी कॉशियस कि आप अपने मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज सिलेक्ट करो एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी अलॉटेड अ सीट इन वन ऑफ द कॉलेजेस। गवर्नमेंट, प्राइवेट दोनों ऑप्शंस होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस यू कैन फिल ऑल ऑफ दोज। Number 2, I'll be discussing about my college, that is Sri Dhanvantri. तो सब बच्चों को डाउट होता है कि how is the college, and of course जब हम दूर होते हैं we don't have any insights of the college and बहुत सारे questions होते हैं। So first of all, what is the fee structure of our college? It is about 3.28 lakhs per annum. तो this is fees for the first year. इसमें आपके जो extra fees और सब कुछ होता है वो भी included होगा. This is a tentative idea and every year there is about 5 to 10% increment also. तो आपको approx 3 to 3.5 के बीच में per annum होगा। How many installations of fees? The course is for 5.5 years and इसमें आपको 5 installments भरनी होती हैं। 1 year is for internship but उसके भी लास्ट के 0.5 year की हमारे बैच तक तो देखो फीस ली गई है। Now let's see अगर कुछ changes होते हैं तो। Next question कि आखिर हमें मिलेगा किस रैंक पर ये कॉलेज? So the simple answer to that is it is quite variable every year. Last year, that is for 2024, the last mark up to which the college was allotted were about 420 and this year because नीट का एग्जाम भी टफ था तो कट ऑफ भी काफ़ी लो आई है। सो दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग मे बी अराउंड 350 320 तक वालों को मिल जाएगा कॉलेज, बाकी तो डिपेंड्स। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। Then the next thing which we usually have doubt about is how is the college campus. So to be honest, the campus is not very big but it has all the necessary things. मतलब कि it is well equipped. सारे subjects की आपको labs मिलेंगी with all the equipped instruments और जो भी हमारा होना चाहिए practicals वो सारे कुछ facilities available हैं and academics are very good. The faculty is very nice and experienced. Like ऐसे कोई रट्टू तोता की तरह नहीं बोल रही हूँ मैं, I'm not being paid to say this but actually it is nice. उसके बाद apart from that, this is academics point of view. If we have any research potential then yes there are some programs and workshops और सब कुछ होता रहता है तो उसमें भी आप पार्ट ले सकते हो। Along with curriculars we of course want extra curriculars. To talk about extracurriculars, many activities are conducted in our colleges like different weeks are celebrated जैसे कि spine day, breastfeeding day and rather weeks, anti-ragging week and what not। तो ऐसे वाली regular activities तो होती रहती हैं। इसमें they include जैसे poster making competitions या फिर ऐसे सारे कुछ स्लोगन कंपटीशन, लोगो कंपटीशन, डांस कंपटीशन तो रेयर होता है बट होता है वो भी एंड ऐसे सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते रहते हैं। उसके अलावा द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इन आवर माइंड इज कि फंक्शंस होते हैं यानी वेरी डाइसी थिंग आई वुड से कि देखो फंक्शंस होते हैं बट इट इज़ योर इनिशिएटिव। ऐसे नहीं है कि ओके ऐसे फिक्स ही है कि ये वाला फंक्शन होगा ही। इट इज़ योर इनिशिएटिव आपके सीनियर्स का एंड पूरे बैच का कि यू हैव टू गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि ये फंक्शन करा दो परमिशन लेनी पड़ती है और सब कुछ करना पड़ता है बट उसके बाद हो जाते हैं लाइक टीचर्स डे एंड छोटे मोटे सेलिब्रेशन। उसका रेफरेंसेज यू कैन टेक फ्रॉम माई अदर वीडियोज़। एंड अगर हम बात करें बड़े स्केल फंक्शंस की, फेस्ट की, तो फिर वो नहीं होते
होते हैं हमारे कॉलेज में होते हैं, बट वी एज आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और एज वी आर इन आयुर्वेदिक फील्ड वी डू हैव सम स्पेशली डेजिग्नेटेड फंक्शंस लाइक इन द फॉर्म ऑफ आयुर्पर्व। तो उसमें क्या होता है कि वो होते तो वर्कशॉप्स भी हैं बट साथ में वो फंक्शन भी होता है, तो वहाँ पे आपकी प्रॉपर डांस सिंगिंग सब कुछ होता है। दे आर लाइक एनुअल डे फंक्शन कह लो आप उसको, या फिर इट इज अ क्यूमुलेटिव थिंग ऑफ एवरीथिंग। बट ऐसे कि बड़े बड़े सिंगर्स आ रहे हैं, मूवी स्टार्स आ रहे हैं, वो वाले फेस्ट नहीं होते हैं लाइक यू वुड एक्सपेक्ट जैसे एम्स वगैरह में होते हैं। दैट इज नॉट द केस ओवर हेयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि भीड़ बढ़ाने के लिए ना हमें वर्कशॉप्स और वगैरह में भी ले जाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। मतलब वी डू ऑब्वियसली गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट वो ऐसे आपकी एक छोटी सी आउटिंग हो जाती है। सो ओवरऑल आई वुड से दैट येस एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं, मे बी नॉट अप टू अ लेवल वी वुड वांट, बट मे बी आपके टाइम तक होने भी लगे बिकॉज विद QCI यू नो रेगुलेशंस एंड रूल्स कमिंग अप एवरी डे, न्यू थिंग्स आर कमिंग अप, तो बहुत चीजें मॉडिफाई हो रही हैं एंड ऑलरेडी जितना एग्जिस्टिंग है वो भी मोर देन इनफ है। सो यू कैन हैव अ गुड पैकेज ऑफ करिकुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर्स, और जो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मिसिंग है, चंडीगढ़ में हो वो तो आप खुद मजे कर ही सकते हो। सो ओवरऑल आई वुड से दैट SDSCH इज अ गुड ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द फूड फैसिलिटीज। अगर आप यहाँ पर PG लेकर रहते हो, आसपास बहुत सारे PG ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो फिर यू कैन स्टे देयर एंड फूड के लिए यू कैन रेफर टू द मेस फूड ऑल्सो, दैट इज गुड एंड वेरी अफोर्डेबल स्पेशली, तो फिर दैट इज अ गुड ऑप्शन। बट फर्स्ट ईयर में आपके लिए हॉस्टल फैसिलिटी कंपल्सरी रहेगी। जैसे मैं पर्सनली 3 years हॉस्टल में रही थी, बट दैट वाज अ डिफरेंट हॉस्टल इन आवर टाइम। नाउ आई स्टे इन PG, तो दोनों का एक्सपीरियंस अच्छा है। एंड ऑल्सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हाउ इज द एनवायरमेंट ऑफ द कॉलेज। तो अगर हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली SDSCH की बात कर रहे हैं, तो it has a very nice environment, a very friendly environment. Along with the friends you make in the college, the teachers are also very helpful. रैगिंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है। अगर रैगिंग होती है ना तो रैगिंग कमेटी में इन्फॉर्म कर देना, अभी तो देखो उसकी मेंबर मैं ही हूँ, तो आ जाना कभी भी। उसके बाद फिर एंड यस यहाँ पर ऐसे क्लब्स और कमेटीज भी बनी हुई है सारी अलग अलग। नेक्स्ट वेरी बेसिक क्वेश्चन, BAMS संस्कृत में होता है, हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, टफ होता है, ईजी होता है, तो ये सब कुछ होता है। इन सबका एक पैकेज है BAMS। तो संस्कृत में ऑब्वियसली हमारे वर्सेस होते हैं, जो हमारे एक्चुअल स्क्रिप्ट्स थे वो संस्कृत में होते हैं, तो वी कैन नॉट डिनाई दैट वी हैव टू स्टडी संस्कृत टू अंडरस्टैंड दोस, बट उसका इंटरप्रिटेशन बहुत इजीली अवेलेबल है। वी हैव मेनी ऑथर्स एंड वेरी गुड राइटर्स, तो उसका हमें इंटरप्रिटेशन हम हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, बट नॉर्थ साइड में हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। एंड ऑब्वियसली ट्रांसलेशन फ्रॉम संस्कृत टू हिंदी इज अ ईजियर टास्क। नाउ अनदर थिंग कि संस्कृत तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो वोंट दैट बी टू डिफिकल्ट फॉर मी, मैं तो ये कर ही नहीं सकती हूँ। सो लेट मी टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने भी संस्कृत कभी नहीं पढ़ा था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आई और मैंने संस्कृत पढ़ी, बट आप इजीली समझ पाते हो बिकॉज यहाँ पर प्रॉपर संस्कृत आपका 1 whole year के लिए एज अ सब्जेक्ट रहती है, तो आपको बेसिक से सिखाया जाता है। नेक्स्ट, अब क्या हमें बस ये एंशिएंट टेक्स्ट ही पढ़ने हैं? नो, दैट इज नॉट द केस। आपको अलॉन्ग विद दिस सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं काय चिकित्सा, दैट इज मेडिसिन, तो इसमें आपको आयुर्वेदिक एस्पेक्ट भी पढ़ना है, दैट इज द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आयुर्वेदा। जो भी हमारी फॉर्मुलेशंस होती हैं, पंचकर्मा प्रोसीजर और सब कुछ तो हमें पढ़ना ही है। साथ में हमें किसी भी डिजीज का मॉडर्न एस्पेक्ट भी पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल फीवर, इसमें हमें ज्वर भी पढ़ना है और हमें फीवर भी पढ़ना है, दोनों की क्लासिफिकेशन करनी है। तो बेसिकली आपको दोनों चीजें पढ़नी है एंड आपका काम बस डबल ही हो रहा है। बट दैट डज नॉट मीन कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, it only means a better knowledge, a better cumulative effect you can serve to the mankind. Also, the next very common question which you all have is SDSCH. It is a college, a medical BMS college. Along with that, what is the hospital service? So yes, we do have a very good hospital in the campus only. मतलब campus, हाँ मतलब उस same area में ही हमारा hospital है, college building भी है और hospital भी है. It is at present about 125 bedded hospital. OPD अच्छा है. We have regular patients in each and every department. Of course, we have so good and experienced faculty and doctors. It is a very well equipped hospital. Next, about the PG courses, then yes, our college also offers PG courses in some of the major subjects. अभी कुछ subject में है और कुछ subject में नहीं है. So at present we have PG in Samhita department, Rog Nidan department and
Gynae, that is Prasuti Tantra and Stri Rog, and Dravya Guna. Next up about the infrastructure and how is the college building. So let me tell you, and I guess I can assure you कि it is one of the best, because अभी नया नया बन रहा है हमारा कॉलेज, एंड yes I would like to say बन ही रहा है, because वो बन ही रहा है यार, हम 4 साल से और उसकी कंस्ट्रक्शन खत्म ही नहीं हो रही है. बट द गुड पॉइंट इज कि एट द एंड द रिजल्ट इज वेरी नाइस. क्लासरूम्स बहुत अच्छे हैं, दे हैव स्टेप लेडर पैटर्न, तो फिर इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड. आपकी डिजिटल क्लासरूम्स है, यू हैव स्मार्ट बोर्ड्स जहाँ पर की पिक्चर्स भी, पीपीटीज और सब कुछ अच्छे से डिस्प्ले हो सकता है. एंड ऑल्सो द एंटायर कॉलेज इज फुल्ली वेंटिलेटेड एंड एसी फैसिलिटी भी होती है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम. एंड द लेबोरेटरीज आर वेल इक्विप्ड, जैसे कि अनाटमी लैब में यू हैव अ प्रॉपर डायसेक्शन हॉल, देन फिजियो लैब में माइक्रोस्कोप्स भी हैं जो कि काम भी करते हैं, एंड एवरीवेयर यू have different models also. But apart from that, if you are into sports, then I am sorry, हमारे अभी तक तो कॉलेज में देखो स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है. yes स्पोर्ट्स मीट होती है, उसमें if you are into some sports, like if you say play some sports regularly, तो definitely you can take part in that. पर ऐसे proper regular sports नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं. लाइब्रेरी इज वेल equipped, वहाँ पर कंप्यूटर फैसिलिटीज भी हैं, बुक्स और सब कुछ है. एक क्वेश्चन तो आप में से किसी का था कि मुझे कौन सी बुक्स लेनी चाहिए. यार रुक जाओ, आ जाओ पहले कॉलेज में, और उसके बाद जस्ट एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं. आराम से टेक योर टाइम एंड डोंट फ्रॉम दैट. उसके बाद मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, डायसेक्शन होता है या नहीं, व्हाट डज द कोर्स एक्चुअली ऑफर यू. तो उसके लिए आई विल अपलोड अ पार्ट 2 इफ यू वांट दैट, एंड डू लेट मी नो. सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. आई गेस आई हैव shared all the necessary information, but still if you have any doubts, then feel free to mention them in the comments below. Thank you for watching. Have a good day.